زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کو سلام، اور جتنے میرے دوست بہن بھائی فیس بک پہ لائیو مجھے جوائن کر رہے ہیں، میں ان سب کے لیے بھی خداوند کا شکر گزار ہوں۔ دو چیزوں سے خداوند کو نفرت ہے، دو ایسی انسان کے اندر چیزیں ہیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی شخص کے اندر بھی نہ ہو۔ وہ روحانی شخص ہے، وہ جسمانی ہے، وہ کس نسل کا ہے، وہ کس رنگ کا ہے، خدا دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا: گھمنڈ اور جھوٹ۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب آسمان سے فرشتے کو گرایا گیا تو وہاں پہ جو گناہ سرزد ہوا وہ یہی تھا۔ وہ جو خدا کے حضور میں ستائش لے کر جاتا، اور اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ خاتم الکمال تھا، یعنی اس پہ آ کے حسن ختم ہو جاتا ہے، اتنی کوالٹیز اس کے اندر تھی۔ اور وہ خدا کے تخت کے چوگرد جو ستائش ہوتی، وہ اپنے پروں کے اندر اس کو لے کر جاتا، اور وہ وہاں جا کے اپنے پروں کو کھولتا، تو اس سے خدا کا دل محظوظ ہوتا یا خدا متاثر ہوتا۔ اس نے اپنے دماغ میں آج بھی کچھ لوگ، اور ان کے اندر روحانی گھمنڈ بھی ہوتا ہے، یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ہر شخص کے اندر جنم لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس وائرس کو اگر آپ مارتے رہیں گے، اس کو آپ بٹھاتے رہیں گے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ گھمنڈ بڑے بڑے لوگوں کو۔ آج بڑی خاص بات میں خداوند کے کلام میں سے آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، آئیے میرے ساتھ نکالیے۔ پالوس رسول کا خط ہے کرنتھس کے نام پہلا خط، کرنتھس کے نام پہلا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ ہاں جی، پہلا کرنتھیوں کے نام خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ جی، ہم خدا ان کے مقدس کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ اونچی آواز میں ذرا پڑھی گا لڑو۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، جب حالات آپ کے قابو میں ہوں، جب آپ سمجھ رہے ہوں کہ اب ہر چیز بیلنس ہے، بڑی خاص بات ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے، یعنی جب آپ یہ سمجھیں کہ سب کچھ بیلنس ہے، سب کچھ درست ہے، تو شاید تبھی ایک افعی، ایک دشمن آپ کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرے۔ رسول بڑے تجربے سے یہ بات لکھ رہا ہے، اور لکھتا کیا ہے؟ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، جی، وہ خبردار رہے، وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ کہ گر نہ پڑے۔ تھینک یو ویری مچ، بیٹھ جائیں۔ جو اپنے آپ کو، یہ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، شیطان ہمیشہ ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہے جو دل جمی سے خدا کے کلام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ جو رسول کہتا ہے میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھ سے بدی ہو جاتی ہے، یہ رسول کی سٹیٹمنٹ ہے۔ انسان جس بدن کے اندر سروائیو کر رہا ہے، اس کی جو سرشت ہے یہ گناہ سے پیدا ہوا ہے۔ کلام میں لکھا ہے مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اب اسی گناہ کی جو ویلیوز تھی وہ انسان کے اندر بڑھنی شروع ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ جب کلام میں لکھا ہے جب انبیاء یا بروں اور بچڑوں کا خون ہماری خلاصی نہ کرا سکا، تو پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا
کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا اور وہ کیا کرے گا, ان کے گناہوں سے ان کو نجات. اصل میں جو یسوع مسیح کا کفارہ ہے, یسوع مسیح کی مصلوبیت ہے, یسوع مسیح کا صلیب پر دیا جانا ہے, وہ کوئی ڈرامائی تشہیر نہیں ہے, نہ وہ کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے, وہ منصوبہ ہے خدا کا جو عدن کے اندر ہوا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اور عدن میں ہی خدا نے طے کیا کہ شیطان جو دنیا کو اپنی طرف مبذول کیے ہوئے ہے, اپنی طرف اٹریکٹ. اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے, پہلے ہوتا تھا بچہ چھوٹا ہوتا تھا تو ماں اس کو کھلونوں کے ساتھ متاثر کرتی, نظاروں کے ساتھ, یہ دیکھو درخت, یہ دیکھو پھل, یہ دیکھو کھیت. اب موبائل کے ساتھ بچے, اب چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 1.25 مہینے یا 1.5 مہینے کا, اس کو پتا ہے کہ یہ موبائل ہے اور اس کو میں نے کس طرح چلانا ہے. 2-4 ماہ کا بچہ بھی اٹریکٹ ہو. میڈیا اتنا تیز ہو چکا ہے. میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, آپ ترقی ضرور کریں, آپ ضرور اپنے بچوں کو موبائل لے کر دیں, لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کو خراب بھی کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور یہاں پہ بڑی اہم بات ہے, لکھا ہے جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے. ایلی کو یہ گمان تھا کہ میں ہیکل میں کہان ہوں تو میری اولاد بھی آگے ہی وہ بھی کہانت میں آئے گی, لیکن وہاں پہ اور کچھ ہونے لگا. لکھا ہے جو ایلی کہان کے بچے تھے وہ جو ہیکل کے اندر خواتین آیا کرتی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی. اور کلام میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ ناگہاں برباد ہوئے. اور رسول ہمیں بڑی اہم اور تجربے کی بات کہتا ہے, جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے. ایک اور کہانی کو ساتھ لے کر چلے گی. قضات کی کتاب میرے ساتھ نکالیے. قضات کی کتاب میں ایک کہانی ہے سمسون اور دلیلہ کی. اس میں, اور یاد رکھے شیطان ہمیشہ وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہماری کمزوری ہوتی ہے, اور ہمیشہ اسی چیز پہ حملہ کرتا ہے جس سے ہم جلدی شیطان کی بات کے لیے اس کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ جو سب سے بڑی کمزوری ہے. آپ جانتے ہیں کہ سمسون جب پیدا ہوا تو اس کی ماں کو کیا کہا گیا تھا؟ جی ذرا ہاں جی پڑھ دیں, 4 آیت ہے 13ویں باب کی. سو خبردار, میں یہ نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا. نہ میں پینا, نہ نشے کی کوئی چیز پینا, نہ کوئی ناپاک چیز کھانا. کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی, اور تیرے بیٹا ہوگا, اور تیرے بیٹا ہوگا. اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے, اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے, اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا, اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا. آپ سن رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی؟ اچھا ٹھیک ہے. کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہاں پہ جو سمسون کی ماں ہے اس کو یہ اویئرنس دی گئی کہ یہ عام بچہ نہیں, یہ بڑا اسپیشل ہے, اور اس کے لیے اس کو کچھ ہدایات دی گئی کہ تو نہ اس کے سر پر استرا, نہ اس کو کوئی نشہ کی چیز. اور وہ بچپن سے ہی اس کے کان میں یہ کہتی تھی کہ تو خدا کا نذیر ہے. اور آپ جانتے ہیں اس کو ایک اور بھی ہدایت جاری کی گئی کہ اس کے سر پر کبھی استرا نہ پھرے, اور اس کے لیٹیں تھیں. اور جب وہ جوان ہوا, خوبرو تھا, اور شیطان نے اس کو ایک دم نہیں, یہ ذہن میں رکھیں, شیطان آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر گمانڈ پیدا کرنا شروع کرتا ہے, تھوڑا تھوڑا وائرس چھوڑتا ہے, اور یہی وائرس ایک دن ان کی زندگی میں ایک بلاسٹ کی صورت اختیار کر جاتا ہے, اور پھر وہ پڑے رہتے ہیں. اور پھر خدا کے حضور وہ معافی بھی مانگے تو خدا خفگی کا اظہار کرتا ہے, جس طرح کے بنی اسرائیل کے لوگ. آئیے ذرا آگے چلتے, 14ویں باب کی پہلی ہے. اب اس کا شیطان پیچھا کر رہا ہے, اور اس کے اندر اب میں 3 جگہوں پہ اس کی نشاندہی کروں گا. 14ویں باب کی پہلی ہے. اور سمسون
हाँ जी, और समसून तिम्नत को गया, और तिम्नत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस नौजवान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? औरत। और शैतान हमेशा वहीं पे हमला करेगा जो आपकी कमजोरी है। और यहाँ पे शैतान ने सबसे जो अहम उसकी कमजोरी ढूंढी वो औरत थी। वो तिम्नत में गया तो वहां एक औरत पे उसका दिल फरेफ्ता हो गया। हाँ जी, पढ़ दे जरा। और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है। अब ये वो लोग थे जिनके बारे में तो खुदा ने मंसूबा बनाया था कि तू उनको मारेगा, उनको रगेदेगा और उनको तहवाला करेगा और मेरी कौम को फतह दिलाएगा। खुदा तो मंसूबा ये बनाए हुए है, और शैतान हमला क्या कर रहा है? अपना दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं आप? वैसे जो दुश्मन है वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और कभी शैतान से मैं अक्सर कहता हूं गुनाह जितना मर्जी प्यारा हो कोई उतना हाथ नहीं मिला। जितना मर्जी लवली करके शैतान पेश करे, गुनाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। और उसने इसकी यानी समसून की कमजोरी ढूंढ ली। उसने सबसे पहले उसका जो मेल मिलाप कराया एक औरत से कराया, और वो फिलिस्तीनियों में से एक औरत थी। अब आगे चलते हैं, मेरे साथ पढ़िए, इसको छोड़ दे यहीं पे 16वें बाब की पहली है। हाँ जी, गलाती की किताब 16वें बाब की पहली है। आज सबसे बड़ा जो मसला है, बस खड़े होकर पढ़े। फिर समसून गजा को गया। फिर समसून गजा को गया, पहले तिम्नत को गया। वहां भी एक औरत उसको मिली, उसको ट्रैप करने के लिए शैतान ने एक बड़ा हमला उसके लिए तैयार कर रहा है। अब वो 16वें बाब में फिर समसून गजा को गया। हाँ जी, वहां उसने एक कसबी देखी। वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया। और गजा के लोगों को खबर हुई कि समसून यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे और रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। अब दुश्मन उसका पीछा मुसलसल कर रहा है। आप इस बात में की तरफ जरा थोड़ा सा ध्यान दें। जो अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे। आप ये ना समझे कि पानी का बपतिस्मा ले लिया तो जय यीशु की, और गैर ज़बाना रबा भरा शबा भरा खमारा भरा गैर ज़बाने बोली तो बस यहाँ पे बस है। आप ध्यान में रखें, आप पे अगर नेमतें भी काम कर रही है, आपके अंदर अगर खुदा की शिफा भी काम कर रही है, तो भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अब लिखा है खबरदार रहे। कौन? जो अपने आप को कायम समझता है कि कहीं गिर न जाए। अब ये शख्स बड़ा मजबूत है। जब भी दुश्मन इस पर हमला करता है, ये रस्सियों को तोड़ता है और एकदम दुश्मन को मार के उसको जमीन पे गिरा देता है और फतह हासिल करता है। इसकी वजह पीछे क्या है बताएंगे? उसकी फतह की वजह क्या है? क्योंकि वो मां के पेट से ही खुदा का। और याद रखें, खुदा अपने कलाम की बड़ी ज्यादा उसको लाज है। वो अपने कलाम को मिट्टी में मिलने नहीं देता। खुदा इसीलिए तो खुदा है क्योंकि जो कुछ वो कहता है वो करता है। इंसान इसीलिए इंसान है, जो कहता है वो करता नहीं है। इसलिए इंसान और खुदा में बड़ा फर्क है। लेकिन यहाँ पे बड़ी खास बात है, लिखा है समसून को एक और जगह पे भी बीबी मिली। जी, ये शैतान क्यों मुसलसल समसून को ये औरत ही से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? आज भी नौजवानों का सबसे बड़ा जो मसला है वो सेक्स है। आज शैतान ने बड़े इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं ताकि लोग, आप यूरोप के अंदर जाएं तो वहां लड़के लड़कों के साथ शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां, हम जिनसी तलकात जो हैं वो। और लिखा है जब ऐसा होगा तो लोग बदी को पानी की तरह पिएंगे। पर वहां पे मुकद्दसों के लिए एक बड़ी अहम अलर्टेशन है। वहां मुकद्दसों के लिए बड़े मोहतात होने की जरूरत है। खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। क्योंकि जब, और मैं बड़ी खास बात करूंगा, लिखा है लूत बद किरदार लोगों में बसता था
तो भी अपने आप को शिकंजा में खींचता। आपके चारों तरफ बदी हो, लेकिन आप ईमानदार और रास्तबाज हो, यही यीशु मसीह के खून और कफारे का रिवार्ड और रिगार्ड है। क्योंकि जब आप खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आप दुनियावी बातों पर गौर नहीं करते। और रसूल कहता है जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। और लिखा है मैं तो अपने बदन को मारता कूटता और काबू में रखता हूं ताकि औरों में मनादी करके नामकबूल। असल में जंग तो बदन के अंदर है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन सी चीज आदमी को नापाक करती है आदम साहब? हवाला याद क्या? हवाला आपके याद है? कौन सी चीज है? खूनरेजियां, ज़नाकारियां, बदकारियां, मकर, फरेब, झूठ, घुमंड, और यही चीजें आदमी में से निकल कर उसको नापाक। यहाँ पे शराबियों को बड़ा ज्यादा कलाम मिलता है। शराबी कहते हैं वेखो कलाम च लिखे है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਆਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ है वो नापाक। अबे अकल के अंदर जरा सोच तो सही, वो क्या है कि यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे हैं? निकलते क्या है? जो शराब पी लेना ख्याल कितने चले जाते हैं? मां नहीं लगती, भैन नहीं लगती, बीवी ने भी थपेड़े ते बाद लोगों ने भी गाला। तो लिखा शराब से बदचलनी पैदा होती है। अब लिखा रूह से मामूर होते जाओ। और यीशु मसीह को भी यहाँ पे वो दाल लगाने की कोशिश करते, कहते यीशु ने जो मैं बनाई थी है जी, और सुन लीजिए जो यीशु ने मैं बनाई उसमें नशा नहीं था, और यीशु ने सीधी पानी तो ही बनाई है। तुसी जेड़ी पीते हो कितों बनती है? उसमें तो बड़े मसाला जात डाले जाते हैं, बड़े फ्रूट, बड़े फल, और उसको खराब करके फिर आप तक पहुंचाया जाता है। तो तुसी कहते हो बड़ी ब्रांडी है जनाब, बड़ा ब्रांड है। तो जहां भी कोई शराब पीने वाला है, आप खुदा के कल्चर को, एक बंदा यूरोप च अमरीका च बैठा तो कहता जनाब ये केड़ी गल है, इत्थे ठंड बड़ी है। ते मैं कहा ठंड ते अदन च भी बड़ी सी, उथे ते दरख्त ही दरख्त सन, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन सी, ते आदम है भी कपड़ियां तो बगैर सी। पर खुदा ने रिकमेंड नहीं किया कि तू पीवी तो तेन ठंड नहीं लगेगी। याद रखें ये आपके तकसले है जो शैतान ने हमें। यहां भी देखिए जो समसून है उसको एक ही दफा नहीं, उसने पहले एक बीबी पेश की, फिर गजा में, और अब आगे चलिए जरा। इसके बाद सूरत की वादी। हाँ जी, चौथी आयत में। इसके बाद सूरत की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलैला था। इसके बाद सूरत की वादी में से एक औरत से जिसका नाम दलैला था, उसे इश्क हो गया। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ है ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ बीबी मिल जाती जी। यही लिखा है कलाम मुकद्दस में। शैतान उसको प्रोवाइड कर देता है, सहूलियात दे देता है। और यहाँ पे यही लिखा है एक दो नहीं तीसरी जगह पे भी। और ये जो दलैला थी ना, इसने तो कमाल ही कर दिया उसकी जिंदगी। और ये हर दफा, और देखिए लगदी ओदे नाल गुजार, पर अंदर से दुश्मनों के साथ मिली। और उसको कई दफा उसने, आदम साहब कई दफा उसने कोशिश की कि उसको मरवा डाले, लेकिन उसको राज का ही नहीं पता था कि इसकी शहरजोरी या इसकी ताकत का राज क्या है। और कलाम में कई जगह पे आया कि जब वो अपने आप को झटकता तो एक खास वहां पे कलाम में तस्दीक है कि खुदा का रूह उस पर आकर ठहरता, खुदा की रूह उस पर ठहरती और वो दुश्मन को, आप रूह कुदुस के बगैर दुश्मन पे गालिब नहीं आ सकते, याद रखें। क्योंकि रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता और जिस्म रूह के खिलाफ, तो जब को रूह कुदुस ही नहीं, वो दुश्मन पर गालिब नहीं आ सकता। इसलिए रूह कुदुस का होना आपकी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। और यहाँ पे खास बात है, लिखा है तीसरी जगह पे भी दुश्मन ने उसको एक खूबसूरत औरत पेश की। अब लिखा है उसको इसके साथ इश्क हो गया। अब जब वो इसके इश्क में डूब गया तो यहाँ पे उससे गलतियां सरजद भी हुई। जरा 16वीं आयत पढ़िए। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसका दम नाक में आ गया। जब दलैला को उसकी शहजोरी का राज पता न चला, वो ना जान पाई कि ये क्यों, मैं रस्सियां ना भी बन नहीं आ, मैं बड़े प्यार ना भी सारे काम कीते ने, पर ये भी दुश्मन दे हाथ आऊंगा।
तो पीछे वजह क्या थी भाई महमूद? खुदा की रूह उसके ऊपर थी। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि खुदा ने अपने मुंह से फरिश्ते को पैगाम देकर भेजा था कि ये माँ के पेट से ही खुदा का नज़ीर है। याद रखिए, खुदा मौके फराहम करता रहता है। मैंने गुज़रे दिनों ज़बूर की किताब में से भी आपको ये मिसाल की किताब में से सिखाने की कोशिश की कि जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है वो नागहां बर्बाद होगा। बाज़ लोग सीखते हुए वो कहते नहीं सानू सारे पता कलाम सानू बड़ा याद है, लेकिन आस्तर तब तक बादशाह की मंजूरी नजर ना हुई जब तक उसने मर्द की बात को अंडरस्टैंड। अगर आप चाहते हैं कि आप दुश्मन पर गालिब आए तो फिर आपका राब्ता ऐसे नहीं लिखा कि वो रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहे, और लिखा उनकी तादाद बढ़ती ही गई। आज मुझे बताइए, आप में से कभी किसी ने फोन किया आप भाई साहब रफाकत रखिए? लोड़ी कोई जरूरत ही नहीं, रफाकत की जरूरत ही नहीं। कलाम में लिखा है ये रास्तबाज की जिंदगी में बड़े खास औजार है जिनसे वो दुश्मन पर गालिब आता है। इसीलिए तो वो कहता है जो अपने आप को कायम समझता है, हैं? हुण टीवी चैनल ने सानू मैं तो घर ही गिरजा कर लिया जनाब, ते पादरियां ने कुछ घराने में पैकेज बड़े कमाल दे दिते ने, उसे दिन ही विजट करते हैं जिदन इबादत का टाइम होता है जी। तो कलीसिया ब्लॉक को कहते हुण एक बार इबादत कर ले, दूसरी बार इबादत करने का की फायदा है? तो चर्च में जो चर्च की जो अहमियत है वो लोगों की जिंदगी से घटना शुरू हो गई है, और उसकी वजह खास तौर पर यही है कि लोग ये समझते हैं कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। पर याद रखें, दुश्मन आपको एक ही वक्त में आप पे हमला करके नहीं ट्रैप करता, वो मुख्तलिफ हमले करता है, और 3 जगहों पे, पहले तिमनत में, फिर गजा में, अब सूरत में। यहां भी दलैला से उसकी मुलाकात हुई, और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा ने उसको फिर भी यहां पे बचाया। हाँ जी, जब दलैला ने उसके नाक में दम कर दिया तो उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया, तो फिर उसने अपना दिल खोल कर राज उसको बता दिया कि मेरे सर पर उस्तरा नहीं फिरा, कि मेरे सिर पर कभी उस्तरा नहीं फिरा। मेरी जो ताकत है, मेरी जो शहजोरी है, मेरी जो पावर है, उसका राज मेरे बालों के अंदर छिपा हुआ है। अपने इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नजीर हूँ, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट में से ही खुदा का नजीर हूँ। हाँ जी, सो अगर मेरा सर मुंडाया जाए, अगर मेरा सिर मुंडाया जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा, तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा, और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। हाँ जी, जब दलैला ने देखा जब दलैला ने देखा कि उसने दिल खोल कर सब कुछ कि उसने अपना राज उसको बता दिया, दिल खोल कर, कहने का मतलब यही है। हाँ जी, तो उसने फिलिस्तीनियों के सरदारों को कहला भेजा। ऐसा नेटवर्क तेज था, हैं? उदों ते किहड़ा फोन सी या मैसेज कर दिता होगा। आप देखें कि फौरन रिपोर्ट शैतान ने दुश्मन तक पहुंचाई, और बीच में इस्तेमाल किसको कर रहा है? दलैला को। औरत को हम हकीर नहीं यहाँ पे कह रहे, लेकिन जरिया वही है। और यहाँ पे लिखा है उसने फौरन दुश्मन को बताया कि आज गल बन गई। उन्होंने क्या वेख ली पक्की गल करी कि 2-4 बारी बने तो सारे बंदे मार मूर के त्यो कीता। वहां पे लिखा है उसने गधे के जबड़े की एक हड्डी से 1000 बंदे को मार दिया। इतनी पावर थी उसके अंदर, और पावर का राज क्या था? खुदा की रूह उसके ऊपर आकर है। और जब खुद, इसीलिए तो रसूल कहता है रूह को ना बुझाओ। रूह को तो आपसे अगर नाराज हो जाए तो इंसानों की नाराजगी तो काबिल कबूल है, पर रूह कुदुस की नाराजगी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए रूह को ना बुझाओ। और बड़ी खास बात रसूल कहता है जो अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर। और यहाँ पे ये शख्स अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस, इसके अंदर घुमांड आ चुका है, रूहानी घुमांड। वो पता है कड़ी गल अगे भी कई बार मैंने दसिया ना बनया। अब सुनिए जरा। हाँ जी, आज क्या उसके साथ हुआ है? उसने कहला भेजा कि इस बार और आओ, यानी कि होर भी ज्यादा क्या है, थोड़े ऐसी
हुन हो रहा है वो ज्यादा। जी, इसका यहाँ पे ये मतलब है, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। ठीक है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। ठीक है। तब उसने उसे अपने जानों पर सुला लिया। तब उसने उसे अपने जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवा कर सातों लट्टें जो उसके सर पर थी मुंडा डाला। आप सुन रहे, दुश्मन के मुल्क में एवं नहीं उस लिखे टंग दित्तियां सी बरबतां बैदां दे रुखां नूं उसी बेगाना देश नाले गैर जगह कहना गीत साढ़े मुंह किंज निकले, गैर मुल्क में तो गीत भी नहीं निकलता। और आप किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? दुश्मन के साथ बैठकर आप कैसे चाय पी सकते हैं, कैसे आप बर्गर एंजॉय कर सकते हैं दुश्मन के? और यहाँ पे लिखा है इतनी गहरी नींद सो गया। जरा गौर करो क्या किया होगा उसने, दुश्मन ने क्या हमला उस पे किया है। और आज वो लिटे भी कटवा बैठा। अब आगे चलेंगे इसको। और उसे अजियत देने लगी और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा ऐ शमसून फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। फिर उन्होंने जगाया भी है जी, चेक करने के लिए कह दिया है फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। आप पढ़िए जरा जोर देकर। और वो नींद से जागा और कहने लगा मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। याद रखें, दुश्मन का हमला बार बार आप पे होगा, लेकिन आपको रसूल की बात माननी है, खबरदार रहो कि गिर ना। यही पढ़ा है ना? जरा दोबारा रिपीट कर दे इस आयत को। पूरी आयत क्या है? जो अपने आप को कायम समझता है खबरदार रहे। आप अगर टीवी चैनल के मालिक हो गए हैं तो भी आप पे हमला हो सकता है। अगर आप बहुत सारी नेमतों के वारिस हो गए हैं तो भी आप पे हमला हो सकता है। अगर आप बंगलों के वारिस हो गए हैं तो भी आप पे हमला हो सकता है। और कलाम मुकद्दस में यही लिखा है कि ये मां के पेट से खुदा का नजीर है, पर आज वो शिकस्त खुर्दा हो चुका है। उसकी वजह क्या है? उसने वो राज बता दिया है। इसीलिए यिर्मयाह की किताब में लिखा है खुदा के राज अपने दिल में पोशीदा रख। इन्होंने नहीं दसना, दुश्मन को खबर ना हो। ते यही गल सी अदन चोनू किदों पता सी कि किथे है दरख्त ते कौन है दरख्त? तो हवा के कान में आकर कहता क्या खुदा ने सारे दरख्तों का फल खाने से मना किया? जे पता होता तो डायरेक्ट ही ना हमला करता। आज भी शैतान इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, आस्ता 3 टोले चले शिकस्त देने के लिए। और आके शैतान को रिपोर्ट करते हैं और शैतान पहले ने पूछता हाँ आज तू की करके आया? कहता जनाब एक टीम बड़ी पाखलूना भरी ते ओ किश्ती च जा रही सी दूसरे इलाके च, खुदा दा कलाम सुनान ते मैं सारी डूब के मार छड़े। शैतान ने सिर इंज करके हिलाया, उन्हें कहा नहीं तू कख भी नहीं करके आया। वो तो सारे बादशाह चले गए। दूजे ने कहा हाँ भाई, उन्हें कहा कि गिरजे च बड़ी इबादत हो रही सी नासरत कलोनी च तो मैं छाती सुट छड़ी थले, और सारे मर गए। उन्होंने कहा तू भी कुछ नहीं करके आया क्योंकि वो सारे आसमान की बादशाही चले गए। तो एक डिंगा जा मुंह करके परे नु सिख खलोता शैतान का करिंदा। रोज शैतान भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है भी की करके आए हो बदलूआ को। तो ओनू हिलाया तो वो कहता मैं की करना सी, मैं एक टोले च गया माई दी झुग्गी। उन्हां दे विच बड़ा ही प्यार सी, वो बड़े ही एक दूजे दे नाल एक दूजे तो बगैर रोटी नहीं सी खांदे। मैं कुछ भी नहीं कीता, मैं कन्नां च गल्लां कीतियां ने। ते ओ हुण ये किस दा मुंह उधर नूं है, किसे दा उधर नूं है ते किसे दा। शैतान ने कहा तू बिल्कुल ठीक काम करके आया। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि लोग ना इकट्ठे हों। और यीशु मसीह ने क्या अवेयरनेस दी है? जब तुम ऐसा होते हुए देखो तो जमा होने से बाज। शैतान ने चर्च पे हमला किया है। ये कोरोना चर्च पे हमला है, ये ज़हन में रखें। सारी चीजें खुलियां ने, चर्च बंद। यूरोप में
चर्च में आप चर्च में जाना बंद है, क्योंकि शैतान ये जानता है कि खुदा का घर ही बहुत प्लेस है जहां से मेरी शिकस्त का सामान पैदा होगा। और शैतान ने उसको इतना जबरदस्त ट्रैप किया, और दलैला ने लिखा है आज उसकी लिटें कटवा दी। और यहाँ पे खास बात मैं करने जा रहा हूँ, बड़ी खास बात, इसको सुनिए। हाँ जी, आगे। तब फलस्ती उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली, और फलस्तियों ने पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले गए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा। आप सुन रहे हैं? और वो कैद खाना में चक्की पीसता करता था। क्या हो रहा है इसके साथ? रूह कुदस पाया हुआ शख्स, खुदा की हुजूरी में रहने वाला शख्स, दुश्मन की चक्की पीसता है। आपका तमाशा बना देता है शैतान। लिखा उसने सबसे पहली बात शैतान ने क्या की? दुश्मन ने उसकी आंखें निकाल दी, जिन आंखों से वो खुदा के जलाल को देखता था, जिन आंखों से वो खुदा की कुदरत को देखता था, जिन आंखों से वो दुश्मन को पहचानता था, जिन आंखों से वो दुश्मन को शिकस्त बख्शता था, देता था, आज वो आंखें निकल गई उसकी, खुदा के जलाल को देखने वाली। और याद रखें, लिखा है वो सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए। आज भी ब्लाइंड्स हैं लोग, आज भी रूहानी तौर पर अंधे हैं लोग। वो नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है, क्योंकि घुमांड उनके अंदर है, घुमांड उनके मस्कनों में घुस चुका है। वो ये समझते हैं कि हम अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ ये माँ के पेट में खुदा का नजीर है, पर शैतान बराबर उसका पीछा कर रहा है। और एक जगह पे आकर उसने ऐसा हमला किया है कि उसकी सारी ताकत का राज वो उसने हासिल कर लिया, और यहाँ पे उसकी आंखें निकलवा दी, और वो दुश्मन की चक्की पीसने लगा। याद रखें, अगर आप और मैं इस बात को नहीं बार बार करेंगे जो रसूल कहता है, दोहरा दें दोबारा। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, वो खबरदार रहे कि गिरना पड़े। शैतान हमें गिराना चाहता है, खबरदार रहें और खुदा उनके कलाम की तरफ ध्यान दें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा के कलाम का यकीन करेंगे। थैंक यू जीसस।